Welcome, guys. This is Engineer Waqas Ahmed, and today we are going to have engineering skill development workshop. And in today's workshop, I'm going to talk about what is your dream being an engineer after few years. जब मैं भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होके इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी की चार दीवारी से बाहर निकलकर आया था, तो मेरी आंखों में भी कुछ ख्वाब थे कि चंद सालों के बाद मेरे पास भी एक अदद यानी कि गाड़ी हो, घर हो, अच्छी सैलरी हो और वो सैलरी कुछ सालों के बाद बढ़ती चली जाए. दैट वाज माय ड्रीम. You understand? This is actually my salary. This was the salary. I am showing you the dream जो आप शायद भूल चुके हैं. अगर 2 साल के बाद मैं 50,000 रुपया ले रहा हूं, so after next 2 years I should get 1 lakh. After next 2 years I should get 200 lakh. So you can see that there is a continuous growth. Everybody want to see the growth, progress in salary. अगर आपकी कंपनी आपको काम देती जा रही है ज्यादा से ज्यादा और आपको पैसे नहीं दे रही, दैट इज नॉट द प्रोग्रेस, दैट इज बर्डन. राइट? यू अंडरस्टैंड? इफ यू एग्री विथ मी, यू हैव फुल राइट टू राइट इन द चैट बॉक्स. राइट? सो growing salary is actually growing your career. So that is your dream, that you should get salary with the passage of time. It is not like that. अगर आप 2024 के अंदर एक fresh graduate है, you should be dreaming that in 2026 you should, after passage of 2 years, 2 साल गुजर जाएंगे भाई, लेकिन वो 2 साल गुजरने के बाद आपकी सैलरी डबल होनी चाहिए. So a lot of people right now in this session might be having same kind of information, same kind of feeling when they were graduated, right? So let's talk about it, why it didn't happen. My name is Engineer Waqas Ahmed. I was graduated back in 2010 from UET, and I have total 13 to 14 year of field experience. But before that, let me share with you people my story, my experience, that I got my first job on visit visa in UAE, and it was like really inspirational story because I could not get job in my country. So I secured one visit visa and got job in oil and gas American company. I worked in, images I can show you. I worked in oil and gas sector. I worked in construction projects. I worked on hi-fi airport projects as well as a planning engineer. Okay. So my journey is going to inspire you a lot. I will be sharing each and everything today to help you people, right? So next is journal. Let's talk about the journal major challenges as an engineer. If you agree with me, please write in the chat box. As a engineer, just give me a moment. As an engineer, 1 minute, it would be okay. Just wait a moment. Okay. Just I'll be sharing again because it was making a sound. So I'm actually highlighting as an engineer what are the major problems you are going to face. As an engineer, the first problem is fresh engineer. As a fresh engineer, wherever you are going to apply for a job, आपको कहीं पे जॉब नहीं मिलेगी. People are going to talk about कि भैया हमें एक्सपीरियंस्ड बंदा चाहिए. आप कहते हो मुझे नौकरी मिलेगी तो मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा. बट पीपल, रिक्रूटर्स, जॉब इंटरव्यूअर्स, दे आर गोइंग टू आस्क यू भैया एक्सपीरियंस लेके आओ. आप कहते हो यार ये मैं कहां पे आ गया हूं. सो देयर इज नो जॉब. सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप में से जो जो फ्रेश इंजीनियर्स हैं एंड दे आर नॉट, मतलब उनको नौकरी नहीं मिल रही, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. Please write in the chat box. If you agree with me, please show your consent, show your agreement with me as you are with me, right? Okay. अच्छा, इससे भी बड़ा प्रॉब्लम क्या है? ये तो चलो गुजर जाता है, टाइम 6 महीने का है, 1 महीने का है, नो प्रॉब्लम. ठीक है. प्लीज डोंट राइट ऑन द व्हाइट बोर्ड. हाँ, थैंक यू वेरी मच. दिस इज योर बिग just give me a moment. Okay. So the second biggest problem, the mid career level engineer. These are the engineers who have 4 to 5 years of field experience. They have low salary. They are only earning 60 to 70 or 80,000 rupees per month. यार इन्होंने सोचा था कि ये इंजीनियर बनेंगे तो कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन जब ये इंजीनियर बन के 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस लेकर फील्ड में काम कर रहे हैं, इनके साथी दोस्तों ने कहा कि भैया कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद सारे मसले हल हो जाएंगे. लेकिन आपने देखा होगा कि आज के दौर में 60 से 80 हजार रुपया हर बंदा कमा रहा है यार. इट्स नॉट अ बिग मनी.
इन्फ्लेशन का दौर है, 60 से 80 हजार रुपया इज नॉट, और जो कंपनी के अंदर इंजीनियर है वो भी 4 से 5 साल एक्सपीरियंस के साथ यही कमा रहे हैं। वाई? बिकॉज द इकोनॉमिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इज सेम, दे कांट पे यू 90%, 80% इंजीनियर्स को इससे ज्यादा पे नहीं कर पाया जाता। So what is the solution in this situation? So this section of engineers who are carrying good experience, 4 से 5 साल का, they should move to Gulf region. Why? Because Gulf region is paying good money, 10 times greater money. But what is the difference? आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है वहां पे क्या कैसे जाना है, अवेयरनेस नहीं है, देर इज नो इंफॉर्मेशन किस तरीके से अप्लाई करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, ये हमारे चैलेंजेस है। हमारे बहुत सारे इंजीनियर्स का ये भी मसला है, यार मैं साइट पे कब तक काम करूंगा। जैसे अभी एक इंजीनियर बता रहे थे कि यार मुझे ड्रीम जॉब नहीं मिली, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। एक मेहनत होती है अन्नेवाह मेहनत करना, ब्लाइंडली यू आर डूइंग एवरीथिंग। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है, 10-10 सीवीज बनाई हैं, एमईपी इंजीनियर की भी सीवी, डिजाइन इंजीनियर, प्लानिंग इंजीनियर, साइट इंजीनियर, बट नो वन इवन इज वर्किंग। कोई भी उनके लिए काम नहीं कर रही, हर डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आपने अपनी एक डायरेक्शन बनानी है, अवेयरनेस लेनी है। तो बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है यार साइट इंजीनियरिंग से निकलकर एक हेड ऑफिस जॉब की तरफ जाएं, हाई सैलरी जॉब हो, हम भी कॉफी के मग पकड़कर एसी के नीचे बैठ के मीटिंग्स का हिस्सा बने, हमें भी कंपनी हेड ऑफिस के अंदर इज्जत के साथ बैठाए। कब तक हम साइट के अंदर रहेंगे? राइट, अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस ड्रीम। और बहुत सारे लोगों का आप में से मुझे चाहिए कौन कौन गल्फ रीजन जाना चाहता है, बिकॉज दिस इज द अल्टीमेट सोल्यूशन। Gulf region is a big enriched engineering industry oriented region जहां पे ऑयल एंड गैस सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, सिविल इंजीनियर्स बहुत ज्यादा तादाद में चाहिए रिक्वायरमेंट में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सो ऑन। सो दीज आर द बिगर चैलेंजेस, और इनका एक ही पॉइंट के ऊपर सबका आके मीटअप होता है, वो है अवेयरनेस। देयर इज नो अवेयरनेस। हमारे इंजीनियर्स को यूनिवर्सिटी के 7वें सेमेस्टर की बात कर लो, 8वें सेमेस्टर में इट शुड बी देयर कि आपको प्रॉपर कैरियर प्लानिंग के ऊपर पता होना चाहिए, हाउ टू चूज योर कैरियर फील्ड। ठीक है, कैरियर कैसे चूज करना है, बट अनफॉर्चुनेटली देर इज नो कोचिंग। देर इज नो कोचिंग हाउ टू राइट एटीएस सीवी। देर इज नथिंग कि किस तरीके से जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना है, जॉब इंटरव्यूज को कैसे क्रैक करना है, नथिंग। देर इज नो टॉक अबाउट स्किल लर्निंग। बिलीव मी, एज एन इंजीनियर यू आर ओनली गिवन अ डिग्री, ओके भैया आप इंजीनियर हो, आज के बाद सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, और आपको सोसाइटी के अंदर फेंक दिया जाता है कि जाएं अब आप अपने रिश्तेदारों की बातें सुने। यू शुड बी पैनिक, यू शुड बी इन स्ट्रेस, यू शुड बी इन डिप्रेशन, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू गेट जॉब फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। ऐसा नहीं है भाई, आपको आज के दौर में हर बंदे की जेब में इंफॉर्मेशन है, पता है आपको, हर बंदे की जेब में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, लड़का बगल में, डंडोरा शहर में, दैट इज अ कोटेशन। इसका मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन आपकी जेब में है और आपको पता नहीं है, कैसे? अब आप सोच रहे होंगे कैसे यार, इंफॉर्मेशन जेब में कैसे आ गई यार? आपकी जेब में ये है भाई, दिस इज इन योर पॉकेट, राइट? दिस इज योर अवेयरनेस। गूगल इज देयर, लिंक्डइन इज देयर, people working on UAE, Saudi and all over the world are on the LinkedIn. आज के इस सेशन के अंदर ना आई एम गोइंग टू हेल्प यू किस तरीके से अपनी जेब में से इंफॉर्मेशन निकालनी है आपने। ठीक है, अपनी जेब में से इंफॉर्मेशन निकालनी सीखे, देन पीपल आर गोइंग टू वैल्यू यू। आज की सेशन में देखते हैं वन बाय वन सारी चीजें। सबसे पहले ना मैंने खुद से एक स्लोगन बनाया कि विद टेक्निकल नॉलेज आप ना एक रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। आप सब लोग इंजीनियर्स हैं और फ्यूचर के अंदर आप प्रोजेक्ट मैनेजर्स बनना चाहते हैं, ये आपकी डेस्टिनेशन है। ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं और इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं। आज आप इंजीनियर्स हैं, राइट? सब लोग इंजीनियर्स हैं ना, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ के आए हैं, तो आप लोग एक नॉन टेक्निकल हैं या जो भी हैं, अब फील्ड पर्सन है, अब इंजीनियर्स हैं, साइट इंजीनियर हैं, छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं, छोटे मोटे पैसे ले रहे हैं, बट यू वांट टू जंप ऑन दिस पोजीशन विच इज कॉल्ड प्रोजेक्ट मैनेजर आफ्टर फ्यू इयर्स। दैट्स इट, हम अपना गोल सेट कर लेते हैं। आर यू रेडी फॉर दैट? ड्रीमिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब 2 साल बाद, किसी को 4 साल बाद मिल सकती है, किसी को 5 साल बाद, राइट? इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। इसको पहले अज्यूम कर लेते हैं, सब अज्यूम कर लें। आई एम गोइंग टू गिव यू 10 सेकेंड्स। अपने माइंड के अंदर पहले इस गेम को जीतना है, फिर रियलिटी के अंदर जीतना है। अगर आप अभी तक अपने से सवाल कर रहे हैं कि यार हमारे से मजाक हो रहा है, तो फिर आप
मेरा ख्याल है कि नहीं बन सकते। पहले अपने माइंड में एक्सेप्ट करें 10 सेकंड्स के अंदर, एक्सेप्ट इट कि आई वांट टू बिकम अ प्रोजेक्ट मैनेजर आफ्टर हाउ मेनी इयर्स। अपने एक्सपीरियंस को देखें, यूजली तौर पे 5 से 6 साल के अंदर अंदर एक इंजीनियर को प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहिए। अब आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं आपका एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से कितने साल लगेंगे आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बनने में। आप लिख दें बस, एवरीबडी शुड राइट देयर, देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट गाइडिंग यू वन बाय वन। आपका 4 साल का एक्सपीरियंस है, आप लिखे 2 साल के बाद मैं बन सकता हूं। 3 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल लिखते हैं। 6 साल का एक्सपीरियंस है, लिख दें 1 साल के बाद। आप 6 से 7 साल के बाद प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाता है, रेडी हो जाता है, डोंट वरी। लेकिन हमें जो लोगों को 12-12 साल लगते हैं, वो भाई उनको पता ही नहीं होता ना। So that is what I am going to guide you people. Please write everybody. Okay, everybody to you can be, no problem. मैं आपको पूरा जुगाड़ बताने जा रहा हूं. That is what I am going to tell you. Please write in the chat box. I will be drinking water and you are going to write. Okay. ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के अंदर इसी तरीके से इंटरेक्टिव तरीके से चीजें चलती हैं। एवरीबडी प्लीज पार्टिसिपेट। ओके, ओके जी। मैं ये आप लोगों के साथ ना कुछ रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। आपने इंजीनियरिंग पढ़ ली, कुछ सिविल इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, मुझे पता है, ठीक है ना। आज रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेते हैं, ठीक है। कैरियर के मुतालिक रिवर्स कैरियर इंजीनियरिंग के मतलब हम प्रोजेक्ट मैनेजर लग गए, अब हमें रिवर्स के अंदर आना है भाई, किस तरीके से चीजों को लेके चलेंगे, ठीक है। वन बाय वन चीजों को देखते हैं। सबसे पहले आप देखें, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे जाना चाहते हैं, ईदर यू आर गोइंग टू वर्क फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और ऑयल फील्ड प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ये आपका रिवर्स इंजीनियरिंग है, ये आप प्रोजेक्ट मैनेजर की पोजीशन पे है। प्रोजेक्ट मैनेजर से क्या चीजें तवक्को की जाती है, हम रिवर्स इंजीनियरिंग। एक प्रोजेक्ट मैनेजर वो होता है जो एक पूरे कंपनी के एक पूरे प्रोजेक्ट को डिलीवर करता है, ठीक है। प्रोजेक्ट को डिलीवर करेगा, उस प्रोजेक्ट के अंदर वो लोगों को भी मैनेज करता है, ठीक है, पीपल्स मैनेजमेंट। ये समझिएगा आप सारी चीजें, ये पूरी अवेयरनेस है, मैं आपको पूरा समराइज करके बताऊंगा। वो उस प्रोजेक्ट के ऊपर टेक्निकल चीजों को भी देखेगा, व्हाट आर द टेक्निकल थिंग्स आर टेक्निकल इश्यूज, वो उसके ऊपर उसके प्रोजेक्ट के ऊपर कॉस्ट मैनेजमेंट को भी देखेगा, टाइम मैनेजमेंट को देखा जाएगा, राइट। दीज आर द मैनेजेरियल काइंड ऑफ थिंग्स। दैट इज व्हाई दैट पर्सन वुड बी क्लेम्ड एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। अंडरस्टैंड। उस प्रोजेक्ट के ऊपर सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो बड़ी सीट के अंदर बैठ के अंदर कॉफी का इंतजार करना है, नो, सुबह से लेके शाम तक मीटिंग चल रही है। वो प्रोजेक्ट चाहे बिल्डिंग का है, रोड का है, एमईपी, ऑयल एंड गैस, पावर प्लांट, न्यूक्लियर, वट एवर प्रोजेक्ट इज, दैट प्रोजेक्ट मैनेजर इज गोइंग टू मैनेज पीपल ऑन दैट प्रोजेक्ट, टेक्निकल इश्यूज, बिकॉज हमें पता है टेक्निकल के डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर्स हैं, उनको एड्रेस करना, कॉस्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग लेनी, ठीक है। सो ये एक ये सारी चीजें, ये एक स्किल के तौर पे इस बंदे के पास होनी चाहिए। रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेते हैं। अब आप सोचें, आर यू कैरिंग सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन? अगर तो आपके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन है, राइट, तो फिर तो ओके, यू विल बी बिकमिंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, यू आर अ गुड कैंडिडेट फॉर एनी कंपनी। बट इफ यू आर नॉट गोइंग टू क्वालिफाई फॉर सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, मुझे पता है कि बीइंग एन इंजीनियर वी ऑल ओनली क्वालिफाई फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग, टेक्निकल, वी नो टेक्निकलिटीज बिकॉज वी आर द टेक्निकल पीपल। तो मैं हमेशा ये बात कर रहा हूं यार, टेक्निकल नॉलेज के साथ ना हम लोग सिर्फ क्या है, इंजीनियर्स। But with managerial, with project management, this is project management, this is project management, this is project management, project management. With project management, we are project managers. अब अगले 2 साल के अंदर, अगले 4 साल के अंदर, अगले 6 साल के अंदर हमें क्या कुछ ऐड करना है? वी हैव टू ऐड के जो भी प्रोजेक्ट है, इधर दैट इज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, रोड कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, आपका ग्रिड स्टेशन का प्रोजेक्ट है, वी हैव टू लर्न अबाउट इट कि उन प्रोजेक्ट्स के अंदर एक टेक्निकल के साथ साथ कौन सा और भी स्किल ऐड करके हम प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं, दैट इज अबाउट द प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। सो इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द फ्रेमवर्क, ठीक है। चाहे आप ये देखें ऑयल एंड गैस की प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ भी है, आप इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक फ्रेमवर्क को समझिएगा। एक प्रोजेक्ट मैनेजर का जो एक कंप्लीट होल्ड होता है वो किस तरीके से है, उसको हम बोलेंगे फ्रेमवर्क। या पूरी दुनिया के अंदर एक प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कैसे चलता है, ठीक है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट। सो सबसे पहले आपका कोई भी काम है, जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। उस प्रोजेक्ट के फ्रेमवर्क को 5 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, आप खुद सोचिएगा। इट इज वर्किंग फॉर यू पीपल। द फर्स्ट फेज इज कॉल्ड इनिशिएट
phase. The second phase is called planning phase. Third phase is called execution phase. I'm going to help you people to understand as per your field. Please write down your field oriented. Like अगर बिल्डिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो बिल्डिंग लिख दें, रोड पे काम कर रहे हैं तो रोड, कोई भी जो आपका प्रोजेक्ट है ना वो प्लीज आप लिखिएगा लाजमी, ठीक है। मोनिटर, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं इस पूरे फ्रेमवर्क को अगले 5 मिनट के अंदर, इट इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट। एंड देन क्लोजिंग, ठीक है। आपने जनाब एक प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग का है, रोड का, पावर प्लांट, ग्रिड स्टेशन, वट एवर। आपका पहला जो काम स्टार्ट होता है, द फर्स्ट फेज वुड बी कॉल्ड इनिशिएट फेज। फर्स्ट फेज इज कॉल्ड इनिशिएट फेज। आपके ना प्रोजेक्ट पे कुछ पार्टीज होती हैं, जैसे कि क्लाइंट है, कंसल्टेंट है एंड कंट्रैक्टर है। दिस इज नॉट एज मच, लोग समझते हैं प्लानिंग के अंदर चले जाएंगे, एक सॉफ्टवेयर सीख लेंगे, मतलब हमें आसानी से जॉब मिल जाएगी। इन दिस 2 मिनट स्लाइड सेशन आई एम गोइंग टू गिव यू कंप्लीट आइडिया कि पूरी दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट्स को कैसे लेके चलते हैं, ठीक है। तो भैया ये क्लाइंट जो होता है, ये किसी भी प्रोजेक्ट का ओनर है, ये एडवाइजर होता है, कंसल्टेंट एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, और ये प्रोजेक्ट का डेवलपर है। क्लाइंट इज गोइंग टू हायर कंसल्टेंट टू प्रोड्यूस सम डॉक्यूमेंटेशन के भैया इस बिल्डिंग की, रोड की, जो भी प्रोजेक्ट है उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना दें। फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है किसी भी प्रोजेक्ट की वो डॉक्यूमेंटेशन जिसके अंदर ये लिखा होता है कि भैया ये प्रोजेक्ट जो है ना वो कॉस्ट वाइज भी बेनिफिट में जाएगा और टेक्निकल भी ये पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि ये प्रोजेक्ट के अंदर कुछ टेक्निकली चीजें जो है हवा में है, ठीक है ना। आपका जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है उसकी टेक्निकल रिपोर्ट भी तैयार की जाती है। जब ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट अप्रूव हो जाएगी, देन ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट यू आर गोइंग टू डिसाइड योर सर्वे। आप साइट का सर्वे करेंगे, साइट का सर्वे करने के बाद यू आर गोइंग टू मेक कंसेप्चुअल डिजाइन, ठीक है, कंसेप्चुअल डिजाइन। अब इसके बाद दूसरा फेज स्टार्ट हो जाता है, पूरी दुनिया के अंदर ऐसे ही काम है। द प्लानिंग फेज के अंदर क्या होगा कि आपके जो डिजाइनर्स बैठे हैं ना वो डिटेल्ड डिजाइन बनाएंगे, ठीक है। वो बिल्डिंग है, रोड है, पावर प्लांट है, वो उसका कंसेप्चुअल डिजाइन के बाद इनिशिएट फेज कंप्लीट होगा। आफ्टर दैट गोइंग इनटू द प्लानिंग फेज दे आर गोइंग टू डिफाइन अ डिटेल्ड डिजाइन, ठीक है। अच्छा जी, उसका डिटेल डिजाइन बन गया, उसके बाद जी एस्टिमेशन होगी। एस्टिमेटर्स आर गोइंग टू वर्क एंड दे आर गोइंग टू फाइंड आउट हाउ मच कॉस्ट they require to complete that work. ओके, कॉस्ट कितनी लगेगी, क्वांटिटीज लाइक बीओक्यूज बनते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट पे जब ये सारी पार्टीज मिलके काम करेंगी ना, सो दे आर गोइंग टू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी उस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी होती है। ओके, उसके बाद वो प्रोजेक्ट अवार्ड कर दिया जाता है किसी एक कंट्रैक्टर को, लाइक दिस पार्टीज, ये जो पार्टीज है ये कंट्रैक्टर को प्रोजेक्ट दे देंगे, कंट्रैक्टर को, राइट। प्रोजेक्ट अवार्ड कर दिया जाता है। नो, इसी प्लानिंग फेज के अंदर कंट्रैक्टर इज गोइंग टू प्रोड्यूस प्रोजेक्ट शेड्यूल। अब आप कहेंगे यार प्रोजेक्ट शेड्यूल का डॉक्यूमेंट बनेगा। इस प्रोजेक्ट शेड्यूल के अंदर ना आपका कोई भी प्रोजेक्ट है उसके मुतालिक मैनेजेरियल चीजों के बारे में बात होगी कि यार ये प्रोजेक्ट किस तरीके से पैसे खर्च किए जाएंगे, हाउ टू स्पेंड मनी, ठीक है, हाउ टू स्पेंड मनी, आपको कैसे कैसे पैसे खर्च करने हैं, ठीक है। हाउ टू यूटिलाइज टाइम, दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। हाउ टू डिप्लॉय रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मतलब क्या है, आपकी क्रेन है, आपकी मैन पावर है, आपकी मशीनरी है, आपका मटेरियल है। ये सारी इंफॉर्मेशन किस में होगी, आपके प्रोजेक्ट शेड्यूल के अंदर। दैट इज व्हाई दिस प्रोजेक्ट शेड्यूल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लानिंग इंजीनियर, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद तीसरा फेज स्टार्ट हो जाता है। प्लानिंग फेज कंप्लीट हो गया। अब तीसरे फेज के अंदर क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। आपकी साइट के ऊपर मोबिलाइजेशन हो गई स्टार्ट, भाई क्रेन मूव होना शुरू होगी, साइट इंजीनियर्स, कारवान, सेटअप, टेम्पररी फैसिलिटीज। आपने देखा है साइट के ऊपर जब मोबिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, राइट, एग्जीक्यूशन फेज उसे बोलते हैं। साइट के ऊपर जाके आपके वेल्डिंग स्टार्ट, जो जो काम प्रोजेक्ट शेड्यूल में, जो जो काम उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए किया जाएगा वो साइट पे शुरू हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन फेज। जैसे ही एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट होता है ना, साथ ही मॉनिटर एंड कंट्रोल फेज स्टार्ट हो जाता है। ये चौथा फेज भी साथ ही स्टार्ट हो जाएगा। क्यों भाई, इसका मतलब है मॉनिटरिंग। एग्जीक्यूशन का मतलब है प्रैक्टिकली काम स्टार्ट हो गया, मॉनिटरिंग वाले आगे, दे आर गोइंग टू स्टार्ट वॉचिंग क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दे आर गोइंग टू डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरीथिंग, आज कितनी एक्सकवेशन की, आज कितने वेल्ड जॉइंट किए, ठीक है ना, क्या आपने सारा काम कंप्लीट कर लिया, ठीक है। वो पाकिस्तान के अंदर एक है ना सहाफी, वो जैसे सवाल पूछता है क्या आज आपने ये काम कर लिया, तो मॉनिटरिंग वाले भी कुछ ऐसे ही काम कर रहे होते हैं। दे आर क्यूए क्यूसी के लोग होते हैं, साइट स्टाफ होता है।
And after that, documenting that data, they are going to hand over that data to the planning engineers, और प्लानिंग इंजीनियर उस डाटा की बेस पे प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाएंगे, और वो प्रोग्रेस रिपोर्ट जाएगी आपके प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट्स को, कंट्रैक्टर के पास, सबके पास। ठीक है, अंडरस्टैंड? अब समझ आ रही है? एग्जीक्यूशन के दौरान ही दोनों मॉनिटर एंड कंट्रोल, ठीक है, सारे फेजेस इकट्ठे चल रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड? एग्जीक्यूशन और मॉनिटर कंट्रोल इकट्ठे दोनों पैरेलल चलेंगे। जैसे ही एग्जीक्यूशन खत्म होगी, मॉनिटर कंट्रोल भी क्लोज हो जाएगा। अब आपने देखा पेपर देने वाला बच्चा जो पेपर दे रहा है, साथ में मॉनिटरिंग चल रही होती है, वो पेपर कर रहा है, वो अपनी जिंदगी का प्रैक्टिकल काम कर रहा होता है, लाइक कोई पेपर कर रहा है, उसके ऊपर मॉनिटरिंग, जैसे ही उसका पेपर खत्म होगा मॉनिटरिंग भी खत्म हो जाएगी, सिंपल। एंड देन एट द एंड देयर इज क्लोजिंग फेज। क्लोजिंग फेज में आपके प्रोजेक्ट की फाइनल रिपोर्ट बनेगी, हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर, जो भी पंच लिस्ट तैयार होगी। सो दैट इज द फ्रेमवर्क एज अ। अब आप थोड़ा सा मुझे चैट बॉक्स में बताएं, इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड द 5 प्रोसेस बेस्ड प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। ये पूरी दुनिया के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे बिल्डिंग का, रोड का, एमईपी का, ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, कोई भी चीज बनेगी मेरे भाई, 5 फेजेस हैं: इनिशिएट, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटर कंट्रोल एंड क्लोजिंग। क्या अब आप मुझे बता सकते हैं दुनिया के अंदर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो इन फेजेस के बगैर, मतलब हम प्लान कर सके? नथिंग। एवरी प्रोडक्ट नीड टू इंप्लीमेंट सच काइंड ऑफ थिंग्स, एवरी प्रोजेक्ट। ये इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जेनेरिक फ्रेमवर्क है। अब ना एक इंजीनियर के तौर पे, अब आप ये जो पूरा फ्रेमवर्क था, ये एक प्लानिंग इंजीनियर का काम है, वो इनिशिएट फेज में भी काम करेगा, वो प्लानिंग फेज, ये प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए आपको ये फ्रेमवर्क आना बहुत जरूरी था। वो बीज बोते हैं ना, एक वो बीज बोते हैं तो वो 4 साल बाद एक बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है, 10 साल बाद। आपके जहन में आज मैंने वो स्लाइड दे दी बीज की तरह, अब आप पे डिपेंड करता है 2 साल बाद, 4 साल बाद आप पौधा बनते हैं कि नहीं, दरख्त बनते हैं कि नहीं। उसके लिए पानी चाहिए, रोशनी चाहिए, हवा चाहिए। पानी, रोशनी, हवा का मतलब ये होता है अवेयरनेस, स्किल्स और स्ट्रगल। आप बहुत बड़ा दरख्त भी बन सकते हैं। बीज मैंने आपके माइंड में बो दिया है। ये पूरे फ्रेमवर्क के नॉलेज को जो समझने वाला बंदा है वो प्लानिंग इंजीनियर है। आज प्लानिंग इंजीनियरिंग बनेंगे तो कल को प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं। लेकिन व्हाट आर द डिमांडिंग स्किल्स, दैट इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग ओवर हियर। क्या है इसमें भाई जो आपको वहां तक ले जाएगी चीज, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। दैट इज इन नेक्स्ट 5 मिनट्स एंड अदर थिंग आई एम गोइंग टू स्टार्ट। प्लानिंग इंजीनियरिंग जॉब कैरियर किस तरीके से, ये प्लानिंग इंजीनियर जो है ये भाई क्या करेगा, ये सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, यही 5 फेजेस है, ठीक है ना, जो मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। अब यार ये प्लानिंग इंजीनियर क्या करता है कि इसका काम स्टार्ट होता है मैनेजमेंट के साथ। दिस प्लान, अब आप सोचेंगे यार मैं ठीक है, पौधा भी बन गया, दरख्त भी बन गया, पर मुझे स्टार्ट कहां से करना है? तो भैया बात इस तरह से है कि आपने प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आनी चाहिए सबसे पहले। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आप कहेंगे यार ये तो वहीं पे आके हम खड़े हो गए, मुझे पता ही नहीं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है। हम अपनी लाइफ में सब लोग ये कर रहे हैं दोनों काम। क्या हम टाइम, अपने पूरे टाइम को मैनेज कर रहे हैं? सुबह से लेके शाम तक हमारी, हम पूछते हैं यार ये कल क्या करना है, आज क्या करना है, पॉकेट मनी कैसे मैनेज करनी है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट मैनेजमेंट। ये जितनी भी चीजें हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, ठीक है, ये मेजरली इसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद ना आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल, आप किस किस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, बिल्डिंग पे काम कर रहे हो, पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, एमई का प्रोजेक्ट है। डेवलपमेंट साइकिल का मतलब यह है कि उसकी स्टेजेस क्या क्या है, उस चीज को जब हम बनाएंगे तो उसके क्या क्या फेजेस है। फॉर एग्जाम्पल, एक जनरली मैं आपको बताता हूं, एक बिल्डिंग बनती है तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले भैया आपका सब स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा ही है। सब स्ट्रक्चर बनेगा, फिर क्या होगा? फिर सुपर स्ट्रक्चर बनेगा, फिर क्या होगा? फिर एमईपी का काम होगा, फिर क्या होगा? फिर फिनिशिंग का काम होगा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ये इसकी स्टेजेस है जी, ठीक है। इसको मैं और तरीके से भी लिख सकता था, फाउंडेशन बनेगी, कॉलम्स बनेंगे, बट मैंने इस तरीके से लिखा। ये आपकी उस बिल्डिंग की जो है ना डेवलपमेंट साइकिल है। पाइपिंग को भी इसी तरीके से ले सकते हैं। सबसे पहले फैब्रिकेशन शीट्स, कटिंग होगी, फिर रोलिंग होगी, फिर वेल्डिंग होगी, फिर आपकी सैंड ब्लास्टिंग होगी, फिर आपकी यानी कि समझ लें कि इरेक्शन होगी, समथिंग लाइक दैट। अब देखो ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल है। आपने ये टेक्निकल नॉलेज है, ये मैनेजेरियल नॉलेज है। आपने इन दोनों को इकट्ठा करना है कि सब स्ट्रक्चर बनेगा तो कितना टाइम लगेगा मेरे भाई, कितना पैसा लगेगा, कितना लोग लगेंगे, मशीनरी लगेगी, और कितना प्रोक्योरमेंट पे खर्चा आएगा। प्रोक्योरमेंट का मतलब है मटेरियल मैनेजमेंट।
इसी तरीके से सुपर स्ट्रक्चर पे भी आप इन सारी चीजों का जुगाड़ करोगे प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर टेक्निक से, एवरी फॉर एवरी सिंगल स्टेज। पहले आप जो बना रहे टेक्निक बाहर ना जाने पाए, जुगाड़ मैं आपको बताता हूं। एज अ प्लानिंग इंजीनियर इसकी बहुत डिमांड है। आपने उस चीज को समझना है यार, हम बिल्डिंग बनाएंगे, पहले उसके फेजेस डिफाइन कर लें। चैट जीपीटी से जाके देख ले यार, कोई मसला नहीं है। गूगल टेम्पलेट बने पड़े हैं, आपने नई भी फील्ड पे काम किया, अगर थोड़ा बहुत काम किया फिर तो बहुत ईजी है सबके लिए। पहले उसकी स्टेजेस को डिफाइन कर लें। हर स्टेज के लिए आपने टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट का जुगाड़ करना है। अब जब जुगाड़ कर लिया, वो कोई मसला नहीं है, वो कुछ मेथोडोलॉजीज हैं ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब ऑलरेडी कंपनीज काम कर रही हैं, आपको सिर्फ सीखने की जरूरत है। जब ये डाटा आप कर लेंगे ना, देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू आर गोइंग टू लोड दिस डाटा। डाटा बहुत मुश्किल चीज है। डाटा हमें तो पता नहीं भाई कि अपनी लाइफ के अंदर 4 दिन पहले शाम को क्या खाया था, तो ये कैसे याद रहेगा? तो ये डाटा सेव करने के लिए यू हैव टू take the help of some softwares, and the most popular is Primavera P6. Primavera P6 में जाएंगे, that is how it looks like. This is the Primavera P6. I will be sharing with you people. Here we are on Primavera P6. This is called, ये देखिए, यहाँ पे आप आएंगे तो आपको आइडिया होगा, अच्छा जी यहाँ पे तो हर काम लिखा हुआ है, उस काम का डेट भी लिखा हुआ है, उसको कितने दिन में करना है, उससे पहले कौन सा काम होगा, उसके बाद कौन सा काम होगा, इसके पैसों के बारे में भी यहाँ पे हिसाब होगा, इसके ऊपर काम करने वाले लोगों के बारे में भी हिसाब होगा। ठीक है ना। आप खुद देखें, इफ आई विल बी शेयरिंग विद यू पीपल, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल बी स्विचिंग टू सम एक्टिव प्रोजेक्ट। ये देखें, इस प्रोजेक्ट के अंदर तो हर चीज के बारे में हिसाब है यार। ये देखें, आई विल बी शेयरिंग के फील्ड के अंदर किस तरीके से चीजों को लोग लेके चलते हैं। जस्ट 1 मिनट। ये देखें, फील्ड के अंदर ये देखें किस तरीके से इसके पैसों का हिसाब है। ये देखें, कैश फ्लो आ गया, ठीक है। इसको कहीं पे भी किस महीने में कितने पैसे चाहिए, ये देखें यहाँ पे आ गया। ये देखें, नजर आ रहा है। इस हफ्ते में कौन सा महीना, जुलाई, लेट से दिस इज प्रीवियस प्रोजेक्ट, ये पैसों के बारे में हिसाब आ गया, ठीक है। इसके अंदर भैया ये देखिए स्प्रेडशीट, मतलब यार एक प्रोजेक्ट, उसकी पूरी रिपोर्टिंग, उसका सारा कट्ठा चट्टा सारा कुछ, एवरीथिंग इज ऑन सिंगल क्लिक। But you need to understand that is what companies demand from engineers who can work such kind of information, who can summarize the data of complex projects, who can understand किस तरीके से हम प्रोजेक्ट्स को लेके चलें। एक एक चीज को पहले समराइज करना आना चाहिए। देन यू शुड नो कि यार इसके अंदर हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकें, ये हमारी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है। इसी तरीके से हमारे ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। आपके ये देखें, मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करता हूँ इन्फॉर्मेशन। ये आपकी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, लेट्स से, ठीक है। आप इसके अंदर किस तरीके से कॉस्ट को लेके चल रहे हैं, ठीक है। इफ यू कैन, ये देखें किस तरीके से इसके हिस्टोग्राम्स बन रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। ये देखें, ओके। इसके अंदर कॉस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन क्या है, रिसोर्सेज कैसे काम कर रहे हैं इसमें। ये देखें, रिसोर्स असाइनमेंट भी आ गई, रिसोर्सेज कैसे काम करेंगे। दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ओके। ये देखें, ये इसके ऊपर काम करने वाले रिसोर्सेज है यार। ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है, इलेक्ट्रिशियन कैसे काम कर रहा है, पेंटर कैसे काम कर रहा है, एक्सकेवेटर कैसे काम कर रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? सो इस तरीके से सारी चीजों को, सारा कुछ आइडिया लेना, पूरी कंपनी का काम संभालने वाला काम है। अच्छा, मजे की चीज है, ये प्राइमरी P6 कर लेता है, ठीक है। ये मैंने अभी आपको एक्सपोजर बताया। एंड आफ्टर दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। सो दीज आर द मेजर पिलर्स। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है आपके किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर। प्राइमरी P6 शो नहीं हो रहा था मुझे। प्राइमरी P6 अभी शो हो रहा था कि नहीं, मुझे बताइएगा जरा। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ओके, डोंट वरी, डोंट वरी। ओके, 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 दिस इज माय अपॉलॉजीज फ्रॉम माय साइड। आई विल बी शेयरिंग अगेन, आई विल बी शेयरिंग। अब शो हो रहा है आपका प्राइमरी P6? आप बता दें मुझे मेरे भाई। यस, 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 अभी शो हो रहा है। अगेन वी विल अगेन डू इट अगेन, नो प्रॉब्लम। ये देखिए, ये प्राइमरी P6 का डैशबोर्ड है, ओके। एंड अपॉलॉजीज फ्रॉम माय साइड, समटाइम इट हैपेंस बिकॉज जूम के ऊपर थोड़ा सा बंदा अपनी रो में चल रहा होता है। आई एम सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंट सिचुएशन।
ये देखिए, ये हमारे पास एक प्राइमवेरा P6 का डैशबोर्ड है, जहां पे आप देख सकते हैं कि सारे काम एक बड़े समराइज तरीके से दिए गए, राइट। एवरीथिंग इज वेरी समराइज्ड, कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम ये पंप लगेगा। सो योर टीम इज एक्चुअली सिटिंग टुगेदर एंड दे आर गोइंग टू डिफाइन ईच एंड एवरीथिंग, राइट। HVAC, एलिवेटर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, वट एवर, कितने दिन के अंदर ये काम होगा, ठीक है, कितने पैसों के अंदर काम होगा। सो लॉजिक इज हेयर के यहाँ पे आप विजुलाइज भी कर सकते हैं कि किस पैटर्न के अंदर काम चल रहे हैं। अच्छा, आप पैसों का हिसाब रखना है कि हाउ टू स्पेंड मनी, तो वो आपके पास पैटर्न इस तरीके से आ रहा है कि मेरे पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर इस तरतीब के साथ मुझे पैसे। अब इसका पैटर्न थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं आपको, ठीक है, ये देखें, ये सिंप्लीफाई मैंने कर दिया आपको कि यार ये इस तरीके से आपको पैसे खर्च करना है, ये एक पैटर्न चल रहा है, इसको हम कैश फ्लो कहते हैं। इसी तरीके से आप रिसोर्सेज, जो इन कामों के ऊपर काम करने वाले लोग होंगे, द रिसोर्सेज, योर मैन पावर, योर मटीरियल, योर मशीनरी, किस तरीके से उन लोगों की डिमांड है, ठीक है ना। ये उस तरीके से आपने चीजों को लेके चलना है। एवरीथिंग इज जस्ट लाइक दैट, राइट। सो दैट इज हाउ प्राइमवेरा P6 इज गोइंग टू मैनेज योर कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। अब नजर आया ना आपको, मुझे बताइएगा इसमें। अच्छा, वो तो भाई अली खान अभी समझ लो यार, बिलाल थैंक यू, लव यू टू माय फ्रेंड। एंड देखो, ये प्राइमवेरा P6 इज गोइंग टू मैनेज योर कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, ये बहुत बड़ा स्किल है इंजीनियर्स के पास। इंजीनियर्स हमेशा आज भी सवाल करेंगे, सर मैं सिविल इंजीनियर हूं, मैं कर सकता। एवरी इंजीनियर कैन लर्न इट मैन। ये मैनेजेरियल चीज है। आप देखो, क्लाइंट के करीब होने वाला इंजीनियर को सबसे बड़ा जो एक सोर्स है ना, वो प्राइमवेरा P6 है। क्लाइंट सबसे ज्यादा किस इंजीनियर को रिस्पेक्ट करता है, जो उसको सोल्यूशन बताता है। प्राइमवेरा P6 इज द सोल्यूशन थिंग। ये आपके पूरे कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को स्ट्रेटेजाइज करता है, प्लान करता है। और फ्यूचर के अंदर आपने अपने प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसी सॉफ्टवेयर के अंदर करनी है। और करनी कैसे है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट समझ के, उसके फेजेस समझ के, डाटा यहां पे लेके जाएंगे। और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के अंदर सारी कंडीशंस लिखी होती है, मेरा प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होगा, कब फिनिश होगा, कब डिजाइन स्टार्ट होगा, कब ये वो सारा कुछ इसमें है। सो ये प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे 4 से 5 चीजें आपने कर लेनी है। और कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि एक्सप्लेन करना आना चाहिए। दैट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ प्लानिंग इंजीनियर, अंडरस्टैंड। अब आप ये चीजें, ये अच्छा, अब आप कहीं पे भी नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे ना, तो ये चीजें आपको अपनी सीवी के अंदर लिखनी होंगी, और ये चीजें आपको बनानी आनी चाहिए एज अ प्लानिंग इंजीनियर। आपको पता होना चाहिए कि आपको पूरे प्रोजेक्ट का शेड्यूल कैसे बनाना है, यूजिंग दोज प्रीवियस, अभी जो मैंने अभी आपको बताए हैं, वो रट्टा लगा लें उसको 5 चीजों को। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्राइमवेरा P6, कॉन्ट्रैक्ट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। उन स्किल्स को यूज करते हुए एक प्लानिंग इंजीनियर प्रोजेक्ट शेड्यूल बनाएगा। उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट होगा, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, और टीम के साथ कोऑर्डिनेट करने वाले प्लान्स होंगे, लुक अहेड प्लान्स होंगे, अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होंगी, एस कर्व्स और कैश फ्लो जो मैंने बताए थे। ये बड़े बड़े, आप किसी भी प्लानिंग इंजीनियर की लिंक्डइन के ऊपर जाके, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, कुछ जॉब आएगी ना, तो आप देखेंगे यार, हाँ, तो उसमें यही चीजें लिखी होंगी, वी रिक्वायर अ प्लानिंग इंजीनियर हैविंग ऑल दीज थिंग्स। आपका जो जॉब कैरियर प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए शुरू होगा, वो यहीं से शुरू होगा। अगर कल को आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं, तो नीचे वाले लोगों से इस तरह का काम कैसे लेंगे, अगर आपको खुद ही नहीं आता। ऐसे ही है ना, नहीं ले सकते भाई। सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। अब ये इसकी जो है ना इंपॉर्टेंस इसीलिए है बिकॉज ये जो प्लानिंग इंजीनियर है, ये मैंने अभी आपको बता दिया, इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है पता है। आपका ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट है, वी नीड प्लानिंग इंजीनियर्स। आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, वी नीड प्लानिंग इंजीनियर्स। आपका रोड का प्रोजेक्ट है, वी नीड प्लानिंग इंजीनियर्स, वी नीड MEP प्लानिंग इंजीनियर्स चाहिए। आपका यार पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, वी कांट गो विदाउट प्लानिंग इंजीनियर्स। आपका ग्रिड स्टेशन का प्रोजेक्ट है, वी नीड प्लानिंग इंजीनियर्स। मतलब यू नेम इट, कि भाई दुनिया का कौन सा प्रोजेक्ट है, यू नीड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंप्लीमेंटेशन, यू नीड प्लानिंग इंजीनियर्स। एंड अगेन वंस अगेन आई विल रिपीट कि भाई इंजीनियरिंग के साथ हम क्या है, आप भी एक दफा लिखिएगा, विद इंजीनियरिंग वी आर इंजीनियर्स, विद मैनेजमेंट वी आर प्रोजेक्ट मैनेजर्स। मैनेजमेंट सीखे बगैर आप जॉब कैरियर को ग्रो नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली इन गल्फ रीजन। मैं हमेशा, अभी अगली स्लाइड के अंदर मेरा जो स्लोगन है वो है कि हर इंजीनियर को गल्फ रीजन में जाना है। अभी अगली स्लाइड्स आर गोइंग टू गिव यू पाथवे। गल्फ रीजन के अंदर घर से बैठ के आपने किस तरीके की 2 से 3 महीने की स्ट्रेटजी बनानी है। एंड आई सपोर्ट ऑल पीपल बिकॉज मैंने खुद अपने जॉब कैरियर का स्टार्ट अबू धाबी से किया था बैक इन 2011। दिस इज माई स्टोरी एंड टिल 2020 आई सर्व्ड इन अबू धाबी एंड दमाम। Right now, I'm working as a consultant for international companies as a project management consultant.
बट आई विल गिव यू दिस इनसाइड माय फ्रेंड। अगर आपने टाइम निकाल के इस सेशन को ज्वाइन किया तो मैं आपको वो टिप्स अभी बताने जा रहा हूं जिसके थ्रू आप पहले तो अपने लिए क्या करना है, स्किल सीखना है। ये मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं। ये गोल्डन रूल्स मैं इसको कहता हूं टू फाइंड जॉब्स इन यूएई। सबसे पहले द फर्स्ट थिंग यू हैव टू इंडस्ट्री डिवीजन। सबसे पहले आज के सेशन के बाद यू आर गोइंग टू डिसाइड दैट यस इफ आई वांट टू बिकम अ प्रोजेक्ट मैनेजर आई नीड टू स्टार्ट माय जॉब करियर फ्रॉम प्लानिंग इंजीनियरिंग। प्लानिंग इंजीनियरिंग में आप जाना चाहते हैं, ठीक है। अब आपको मैंने स्किल सेट बता दिया क्या क्या चाहिए, बट यू हैव टू डिसाइड बाय योरसेल्फ। एवरीबडी कैन डू। अब फ्रेश इंजीनियर सोचेंगे यार मैं कैसे बन सकता हूं, भैया आप फ्रेश इंजीनियर है, आप जूनियर प्लानर के तौर पे जाएंगे, स्किल आपने वही सीखने हैं। अब कोई बंदे हैं वो क्यूए क्यूसी कर रहे हैं, कोई बंदे डिजाइन में है, कोई साइट में है, यार हम कर सकते हैं भाई। यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग दी स्किल सेट्स एंड अलोंग विद योर जॉब। अपनी जॉब नहीं छोड़े। बहुत सारे लोग अगले दिन जॉब रिजाइन कर देते हैं और कहते हैं ये मैंने जॉब कोई नहीं छोड़नी। आपने विद द लर्निंग प्रोसेस आपने जॉब अप्लाई करें और आपको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती है। मिड कैरियर लेवल भी लोग कर सकते हैं, सीनियर लेवल भी, अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप इससे बेनिफिट लेंगे। सबसे पहले आपने ये सिलेक्ट करना है कि ठीक है जी मैं आज माइंड सेट बनाना है अपना। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब आपने आपने ये स्किल तो चलो साथ साथ सीख लेंगे, साथ आपने जॉब हंटिंग की प्रिपरेशन करनी है। अगले 2 से 3 महीने का प्लान मैं बता रहा हूँ, चिल्ला जिसे बोलते हैं। ये चिल्ला आपने, या आप समझ लो कि 3 से 3 महीने के लिए मैं अपने रिश्तेदार दोस्त और अपने कुलीग्स और अपने इधर उधर के लोगों के लिए मर गया। मैं अब आराम से कुंडी लगा के ना घर से बैठ के, इंटरनेट अच्छा आ रहा है, 2 से 3 महीने यही कर रहा हूं। कंपनीज की लिस्ट बनाएं, कौन सी कंपनीज विच आर ऑपरेटिंग इन गल्फ रीजन, राइट। जो गल्फ कंट्रीज सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरेन में काम कर रही हैं, एंड उसको हम बोलते हैं पीएमसी कंसल्टेंट कंपनीज। वो कंपनी जैसे पार्सन्स है, एकॉम है, केबीआर, केईओ, जैकब्स, आर्किडीज, ठीक है। इस तरह की कंपनीज हैं जो आपने 100+ कंपनीज की लिस्ट बनानी है। अब आप कहेंगे यार ये मैं कहां से बनाऊंगा। लिंक्डइन इज अ सोर्स। इफ यू आर नॉट यूजिंग लिंक्डइन प्रॉपरली, मेरे पास काफी सारी वीडियोस मैं बनाता रहता हूं, लर्न विद इंजीनियर वकास, ठीक है। यहां पे चले जाए, यू कैन फाइंड ऑल द वीडियोस। यार आज ही अपने लिंक्डइन के प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करें। और यहां पे मैंने बहुत सारी, अभी भी आज भी बताऊंगा, डोंट वरी। लिंक्डइन की सारी स्ट्रेटजी बताई हुई है मैंने, कैसे करना है कैसे नहीं करना। बट दिस इज द फर्स्ट टास्क। 100+ कंपनीज का यार डाटा होना चाहिए। खुदा भी दुआओं का जवाब तभी देता है जब आपको टारगेट पता होता है कि मैंने जाना कहां पे। उस कंपनी का नाम तो दुआ में लें भाई, पार्सन अल्लाह को तो बताएं, गॉड को तो बताएं, अपने जिसको आप मानते हैं उसको तो बताएं भाई मैंने कंपनी किसमें, उस आपको भी नहीं पता तो वो कैसे डिसाइड। समझ रहे हैं। 100+ कंपनीज, ताकि आपकी दुआओं में भी उन कंपनीज का नाम आए, आपको बार बार आपका ब्लड भी ऊपर जाए कि ठीक है यार नाम आ रहा है, हम अप्लाई भी करेंगे। कंपनीज करेंगे 100+ कंपनीज। मैंने 5-6 कंपनीज का नाम बताया लिंक्डइन के थ्रू, मैं जुगाड़ भी बताऊंगा कैसे करना है, डोंट वरी, ठीक है। अगली चीज, नेटवर्क विद पीपल। उन कंपनीज के अंदर काम करने वाले लोगों के साथ दोस्ती लगाएं। हमने छोटे बंदे से दोस्ती नहीं लगानी है आज के बाद भाई, सॉरी 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 सॉरी। हम खुद भाई दुबई में जाना है तो दुबई के अंदर इन कंपनीज के अंदर काम करने वाले लोगों के साथ नेटवर्क करें। भैया कैसे करें? लिंक्डइन के थ्रू। अगेन एवरी डे यू कैन सेंड 5 पीपल रिक्वेस्ट। 5 लोगों को अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं, कुछ प्लान खरीद ले लिंक्डइन का। 5 से 10 लोगों को डेली का रिक्वेस्ट भेजें, महीने के तकरीबन 150 लोगों को हो जाएगा मिनिमम। इन 150 में से 150 में से इफ पीपल लाइक 30 people going to respond you, and out of this 30 people 10 people are going to talk to you in inbox, and out of this 10 only 2 people are going to recommend you। और ऐसा नहीं है कि भैया आप उनको डायरेक्टली, प्लीज प्लीज मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ईदर यू फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फ्रॉम एनी कंट्री, नेवर आस्क दीज पीपल के हेल्प मी। आपने कह, दिस इज कॉल्ड नेटवर्किंग प्रिंसिपल्स। डोंट आस्क देम भैया मेरी नौकरी करवा दो। आपने कुछ कहना भी नहीं, वो समझ जाएगा। आप उसकी पोस्ट में जाएं, कमेंट करें, ओ आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय योर प्रोफाइल। कोई वो पोस्ट कर दे, वो पोस्ट करके भी हटा नहीं, आप पहले कह दो वेरी नाइस, वेरी गुड सर, ये मतलब समझ रहे हैं ना बात को। यू हैव टू टेक द इंफॉर्मेशन कि भैया आपकी कंपनी कब हायर हो कर रही है, एचआर के साथ रवाबत बढ़ाएं, एचआर का ईमेल ले लें, सीवी दिखाएं, उसको कहें यार ये मेरी सीवी देख दोगे किस तरह से, मतलब ठीक है यार। इस तरीके से आप 1-1.5 महीने के अंदर भी अगर आप उसके साथ नेटवर्क करते हैं, बटरिंग, नो नो नो। अगर आपकी फैमिली के अंदर लोग आपको बर्दाश्त नहीं कर रहे ना, देखो आपके मामू चाचू सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे? दे आर नॉट एक्चुअली गिविंग यू एनी क्लू कि वो आपको रेफर कर सकते थे पर नहीं कर रहे, तो क्या कहेंगे आप उसको?
तो बटरिंग करनी बनती है आपकी भाई, दुनिया ऐसे ही चल रही है। आई एम जस्ट आस्किंग यू टू डेवलप योर रेफरेंस, यू आर अंडरस्टैंड? ऐसे ही है ना इंजीनियर आसिफ, एम आई राइट? तो ये बटरिंग नहीं है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट है। आप उन लोगों से गपशप लगाएं, ठीक है? वरना आइसोलेशन है, आइसोलेशन में जाएं, अपना काम करें, फिर जो भी है। सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू डेवलप योर नेटवर्क, राइट? ओके, थैंक यू। अच्छा, इसके साथ आपने ये काम आपने करने, दीज आर वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स। अब आपने क्या करना है, कंपनीज के बारे में जाने कि कंपनीज की डिमांड क्या है। अच्छा, लर्न स्किल्स। इन दिस केस यू आर बिकमिंग अ प्लानिंग इंजीनियर, यू आर एडिंग ऑल द कंपनीज, यू आर बिकमिंग अ फ्रेंड ऑफ दोज कंपनीज। प्राइमरी P6 प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल, प्लांट शटडाउन, ये सारी चीजें सीखें, ये स्किल्स हैं। एंड along with that you have to apply the jobs with ATS CV, not with ordinary CV। आज के दौर में ऐसे नहीं होता आप खाली सीवी के साथ अप्लाई करोगे यू विल बी रिजेक्टेड। अगर आप एटीएस सीवी के साथ अप्लाई करोगे यू विल बी सिलेक्टेड। वाई? यार, आप जो जॉब एड पढ़ते हो ना, उस जॉब एड के अंदर जितने भी पॉइंट्स लिखे होते हैं, आपका एटीएस सिस्टम क्या है? ऑनलाइन एआई सिस्टम है। आप किसी कंपनी के अंदर ऑनलाइन अप्लाई करोगे, ये कंपनीज 100+ इनमें ऑनलाइन अप्लाई करोगे ना, आप क्या समझते हो सिर्फ आप अप्लाई कर रहे हो? 10,000 अदर एप्लीकेशन आर ऑलरेडी देयर। तो क्या एचआर सुबह से लेकर शाम तक आपकी सीवी को सीधा करता रहेगा? नो नो नो। देर इज एटीएस सिस्टम, ए एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, दिस इज एआई सिस्टम। अगर आपकी सीवी आपकी जॉब एड के साथ मैच कर रही है, लाइक कंपनी को जो रिक्वायरमेंट है आपकी सीवी के अंदर भी है, देन योर सीवी विल बी सिलेक्टेड। सो दैट इज कॉल्ड एटीएस सीवी। Again, on my YouTube channel, I guide people that how to develop your ATS CVs and this is going to give you instant results, ठीक है? और फिर अगर आप इंजीनियर है ना और यहां तक आप पहुंच चुके हैं और ये काम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं नौकरी नहीं मिल रही मुझे, आपने डिसाइड कर लिया, कंपनीज की लिस्ट आ गई, लोगों के साथ दोस्ती लगा ली, कंपनीज के साथ जान पहचान कर ली, स्किल भी सीख लिया, अप्लाई भी कर रहे हैं, यू नीड टू बी, सब्र करें थोड़ा सा। हो सकता है 2 से 3 महीने आपको लगे, बट अगर आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं तो स्किल तो आपने सीखा हुआ है, लाइक प्राइमरी P6 या कोई भी स्किल है, उसको आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हैं। मतलब अब ऐसा नहीं है कि आपका सर्टिफिकेट बेच दे, लोग करते हैं ना अपना इंजीनियरिंग का नंबर बेचने, ऐसा नहीं। फ्रीलांसिंग का मतलब यह है कि आप इस स्किल को फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन के ऊपर जाके एज अ फ्रीलांसर सर्विसेज दे सकते हैं, एज अ इंडिपेंडेंट इंजीनियर फाइवर अपवर्क पे। उससे क्या होगा, आपके ये जो 2 से 3 महीने और लगेंगे जॉब हंटिंग में, आपको थोड़ा सब्र आ जाएगा, एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, लोगों के साथ नेटवर्किंग भी हो रही है, आप सीख भी रहे हैं, आपके अंदर ना एक ऑब्जेक्टिव आ रहा है, पैशन आ रहा है। ऐसा नहीं करना यार, मतलब ना, अब इंजीनियर्स के अंदर किसी भी लेवल पे, फ्रेश इंजीनियर्स हैं या मिड कैरियर लेवल इंजीनियर, मिड कैरियर लेवल के पास नौकरी है, मुझे पता है, वो सीख रहा है और साथ में अप्लाई कर रहा है, उसको तो कोई मसला नहीं है। फ्रेश लेवल पे जो बंदा है ना, जो डिसअपॉइंट हो रहा है, उसको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत है, साथ में डॉलर्स भी कमाएगा, उसको और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है? अब ये जो स्किल सेट है ना, ये सबसे ज्यादा डिमांडिंग है, प्लानिंग इंजीनियर प्राइमरी P6 अक्रॉस गल्फ रीजन। वाई? आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, प्लानिंग चाहिए, आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज में है, प्लानिंग चाहिए, एग्जीक्यूशन में है, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का डाटा कंपैरिजन करना है, मॉनिटर एंड कंट्रोल चाहिए, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स बनानी है। एवरी स्टेज दे नीड प्लानिंग इंजीनियर्स। आपके प्रोजेक्ट की पूरी किस्मत, डिसीजन, स्ट्रेटजी इज इन द हैंड्स ऑफ अ प्लानिंग इंजीनियर, दैट इज व्हाई दे आर हाईली डिमांडेड। आज के सेशन के बाद अपने यूनिवर्सिटी सीनियर से बात कीजिएगा, दे विल बी गाइडिंग यू। ठीक है? प्लानिंग इंजीनियरिंग प्राइमरी P6 मैंने आपको बता दिया। अब कुछ सैलरी इनसाइट्स के साथ भी लोग चलते हैं। लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर जी, अब पाकिस्तान इंडिया के अंदर फ्रेश इंजीनियर को तो पहले 1 साल में तो नौकरी नहीं मिलती, अगर मिलती है सो दैट इज हार्डली अबाउट 15,000 से 30,000 तक सैलरी मिलेगी। बट आई हैव पर्सनली रिकमेंडेड टू कंपनीज कि अगर कंपनीज फ्रेश, मैं फ्रेश लेवल पे जीरो एक्सपीरियंस, तो दे आर गोइंग टू गेट 40 to 60,000 विद प्राइमरी P6 स्किल्स। इट्स समथिंग लाइक इजी टू अचीव। डू यू अंडरस्टैंड? And if you talk about Gulf region, the same thing is happening. There's a big, even मैं मेरे पास अभी पिछले 3 से 4 हफ्तों में बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आई हैं। लोगों ने इन्हीं टिप्स को यूज करते हुए सऊदी अरब, कतर, ओमान के अंदर नौकरियां लेते हैं। मैं हर हफ्ते में सक्सेस स्टोरीज, आज भी मैंने एक अपलोड की अपने पेज पे जाके, आप जाके देख सकते हैं, द स्किल्स एज के ऊपर। तो लोग बड़े, यानी कि ना, शेयर करते हैं कि 4 गुना ज्यादा सैलरी मिल गई, 10 गुना ज्यादा सैलरीज मिल गई। सो दिस इज एक्चुअली विद अ फ्रेश इंजीनियर, इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई इन यूएई, सऊदी अरब, कतर, इफ यू समहाउ गेट जॉब, दिस इज द सैलरी रेंज यू आर गोइंग टू गेट। But with Primavera P6 skills, 4,500 to 6,000, this is the minimum salary you are going to get over there. If you have experience, you are going to get more salary.
ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू हाउ टू डू ऑल दीज थिंग्स ऑन लिंक्डइन। आप लिंक्डइन पे चले जाएंगे, यहां पे आपने लिखना है प्लानिंग इंजीनियरिंग, कैसे कंपनीज की 100+ कंपनीज की लिस्ट बनानी है, कैसे लोगों को ऐड करना है। ये प्लानिंग इंजीनियरिंग है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगी कौन सा रीजन है। ठीक है, ये देखें, आप सऊदी अरब लिखें, कतर, ओमान, वट, ये कंपनीज की लिस्ट आ जाएगी। मैक, ये आ जाएगा, सुंदस आ जाएगा, ब्रोनेल आ जाएगा, KBR, वट, ये कंपनीज की लिस्ट बनाएं। फिर दोबारा इस तरह से मैं आप लोगों से शेयर करता हूं, जरा ये मैं थोड़े टिप्स बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अच्छा, ये जो इंफॉर्मेशन है ना, यहाँ पे ये देखें, ये जो इंफॉर्मेशन है, दिस इज कंपनीज रिक्वायरमेंट। You have to add this information in your CV. I'm not going to tell you कि फेक तरीके से करें। इवन a lot of people सोचते हैं कि यार नहीं, आई एम आस्किंग यू कि स्किल को भी सीखना है, आपको पता होना चाहिए मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, DPR क्या है, एसकव क्या है, PMS क्या है, प्लानिंग क्या है, सब कंट्रैक्टर किसको बोलते हैं, ये सारे काम आपने CV के अंदर लिखने हैं। देन इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई इन दिस कंपनी, दे आर गोइंग टू शॉर्टलिस्ट योर CV एज पर ATS सिस्टम। चैट जीपीटी यूज करें। कौन कौन चैट जीपीटी यूज कर रहा है? चैट जीपीटी को कॉपी करके दे दे कि मुझे इस तरह की CV बना के दे, ATS CV। प्रॉम्प्ट बनाना सीखें। प्रॉम्प्ट बनाना नहीं आता होगा आपको, मेरा ख्याल है। ट्राई टू लर्न, जो टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है उस तरह के स्किल सीखें। अगर आप चाहते हैं कि यार देखो, मैं आपको मजे की बात बताता हूं, आज के दौर में ना, आप जितने भी माशाल्लाह से 70+ लोग इस वेबिनार में, एवरीबडी वांट्स टू गेट सैलरी $5,000। $5,000 एक अच्छी खासी सैलरी बनती है। $5,000 सैलरी हर बंदा चाहता है कि यार मुझे $5,000 मिल जाए तो आई एम खुश। लेकिन उस $5,000 की सैलरी या $10,000 की सैलरी भी मिल सकती है, उसके इक्वलेंट स्किल्स भी आपने सीखने हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सेकेंड टाइम इफ यू आर गोइंग टू कम ऑन दिस वन प्लानिंग इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे पीपल्स का भी ऑप्शन आएगा। पीपल, उसको क्लिक करेंगे तो लोग आ जाएंगे कि जो सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं, उनको कनेक्ट करते जाएं, कनेक्ट करते जाएं, कनेक्ट करते जाएं। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू ऐड 5 people everyday basis. That's what I want you people to do. Understand? So this is how I would recommend you people कि आपने इस तरीके से क्या करना है। सबसे पहले आपको स्किल सीखना है। स्किल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड इन माय रिकमेंडेशन द स्किल इज द 50% स्ट्रेंथ इफ यू वांट टू चेंज योर जॉब career status. Skill is the most important thing. Then awareness. Awareness means you should know about the industry. You should create your ATS CV. You should be on LinkedIn. You should be networking with people who are already working over there, right? And you should be applying with job hunting good techniques. That's what I need you people to follow in next। ये मेरा एक जॉब हंटिंग स्ट्रेटजी का प्लान होता है जो मैं कहता हूं सब लोगों को कि 2 से 3 महीने के अंदर यू कैन चेंज योर स्टेटस। 50% एफर्ट लगाएं इस पे, एंड 50% एफर्ट ऑन दिस थिंग, अवेयरनेस। ATS CV कैसे बनानी है, लिंक्डइन कैसे यूज करना है, लोगों के साथ नेटवर्क कैसे करना है, जॉब हंटिंग कैसे करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करने हैं, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, जॉब इंटरव्यू स्किल्स। So these are the things which are going to help you, and here I would recommend every engineer, चाहे आप प्लानिंग इंजीनियरिंग करते हो या नहीं करते, because you know that project management is as important as you can इवन इमेजिन के। यार हर इंजीनियर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इंजीनियरिंग के साथ इंजीनियर्स हो, मैनेजिंग के साथ, स्किल्स के साथ यू विल बी प्रोजेक्ट मैनेजर। और ये कंप्लीट एक सोल्यूशन ओरिएंटेड जॉब कैरियर है विच इज मोस्टली वेरी क्लोज टू द क्लाइंट। और यही लोग बड़ी जल्दी ना साइट से जंप करते हैं हेड ऑफिस के अंदर, क्योंकि क्लाइंट को इनकी जरूरत होती है। यही लोग कंसल्टेंट में, इनका बहुत ज्यादा स्कोप होता है। कंसल्टेंट में व्हाइट कॉलर जॉब है, जिन लोगों को आइडिया उनको पता है, मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा। कंसल्टेंट की जॉब मजे की होती है ना, ये सबसे ज्यादा, क्योंकि कंसल्टेंट का काम है क्लाइंट को हर टाइम पे बताना कि हमारा प्रोजेक्ट बढ़ गया है या सही है। उसकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग इंजीनियर्स ने बनानी है। दे आर हाई सैलरी जॉब, कैरियर सिक्योरिटी होती है, दुनिया में कहीं पे भी चले जाएंगे, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। इट्स दैट मच गुड गोइंग जॉब कैरियर। ओके गाइज, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप अगर आप लोग प्लानिंग इंजीनियरिंग सीखना चाहते हैं, प्राइमरी P6 सीखना चाहते हैं, पूरा जॉब कैरियर स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट्स के अंदर लाजमी लिखिएगा प्लानिंग इंजीनियर्स, प्लानिंग इंजीनियर्स प्राइमरी P6 प्लीज।